پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل اسلام آباد میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب ایوان صدر میں ہوگی۔ اہم قومی تقریبات کے پیش نظر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے 21 اور 22 مارچ کو تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس، ریاستی عملداری یقینی بنانے کا عزم، جوڈیشل کمپلیکس پر حملے، پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے، املاک کی توڑ پھوڑ، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کا فیصلہ۔ کلرم تنظیموں کے تربیت یافتہ جتھوں کے ذریعے ریاستی اداروں کے افسروں اور اہلکاروں پر لشکر کشی انتہائی تشویشناک قرار۔ یہ ریاست دشمنی ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اجلاس اعلامیہ۔ حکومتی اتحاد کی آرمی چیف کے خلاف مذموم مہم کی شدید مذمت، ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ یہ آزادی اظہار نہیں، انصاف کے دو الگ معیار نہیں چل سکتے۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، کلدن تنظیموں کے تربیت یافتہ عسکریت پسندوں کا جتھا ہے۔ ریاستی اداروں کے اہلکاروں پر لشکر کشی ہرگز آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی رویہ نہیں۔ ثاقب نثار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ طارق رحیم کی مبینہ آڈیو پر تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایک اور تاریخی اقدام، سی ایس ایس کے خصوصی امتحان کے لیے چوتھے چانس کی سہولت، عمر کی بالائی حد 35 سال مقرر۔ یہ رعایت پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کی اقلیتوں، خیبر پختونخوا کی خواتین جبکہ سندھ، بلوچستان اور سابقہ قبائلی علاقوں کے عام امیدواروں کو دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف یا کسی ملک نے جوہری صلاحیت کے حوالے سے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر کی وجوہات خالصتاً تکنیکی ہیں۔ معاملے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں عظیم صوفی بزرگ سید علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار کا دورہ، زائرین کے لیے سہولیات کا جائزہ، 13 سال سے بند کار پارکنگ کو کھولنے کی ہدایت، مزار کے اصل حجرے اور برآمدوں کی بھی تزئین و آرائش کی جائے گی، لنگر کی تیاری اور تقسیم کے انتظامات عالمی معیار کے مطابق کیے جائیں۔ محسن نقوی۔ بڑے پریشان تھے ہم لوگ، جو ہے نا آٹا مل گیا ہے بڑے آسانی سے، بڑے طریقے سے، اور جو ہے نا بہترین انتظام کیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، ویسے ہی لین پہ نہیں لگے، ہمیں مل گیا آٹا۔ اللہ کا شکر ہے، ایسے ملتے رہے ماہ رمضان تک آٹا غریبوں کو، اور مشکل نہیں ہوئے گی۔ بس رمضان پیکج کے تحت پسماندہ طبقے کو مفت آٹے کی فراہمی، شہریوں کی بڑی تعداد تاریخی پیکج سے مستفید، حکومتی اقدامات پر اظہار مسرت۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں بڑھتا جانی نقصان اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، تحریک طالبان پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار، افغان جنگجوؤں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا بھی ٹی ٹی پی میں اختلافات کا باعث۔ بھارتی پنجاب میں سکھ علیحدگی پسندوں کی تحریک خالصتان زور پکڑنے لگی، مودی حکومت نے پوری ریاست کو بھی جیل میں تبدیل کر دیا۔ تنظیم وارث پنجاب ڈے کے سربراہ اور خالصتان کے حاوی رہنما امرتپال سنگھ کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن چوتھے روز بھی جاری، سینکڑوں سکھ گرفتار۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ماسکو میں 4.5 گھنٹے کی طویل ملاقات، دو طرفہ شراکت داری، عالمی اور علاقائی امور اور یوکرین تنازع پر تبادلہ خیال۔ شی جن پنگ کی امن تجاویز پر صدر پوٹن کا مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، بعض مقامات پر یالہ باری، سلسلہ اگلے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خدشہ۔ لیجنڈز لیگ کرکٹ ماسٹرز کا ٹائٹل ایشیا لائنز کے نام رہا، فائنل میں لائنز نے ورلڈ جائنٹس کو 7 وکٹوں سے ہرایا۔ جائنٹس نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں پر 147 رنز بنائے۔ ایشیا لائنز نے ہدف 16.1 اوورز میں 3 وکٹوں پر حاصل کیا۔
अब्दुल-रज़्ज़ाक मैच और उपुल थरंगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और केप वर्दे में काइट्स ऑफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मधु के इवेंट में स्पेन के मार्शल ऑप्स फाते रहे। होम फेवरेट मैतो मॉन्टेरो दूसरे, इटली के एर्टन पोजेल्नो तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन इवेंट का टाइटल अमेरिका की मोना वाइट के नाम रहा। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुश्तरका इजलास के पेश नज़र कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर आज मामूल के मुताबिक खुले हैं। ऐवान सदर में 23 मार्च की तकरीब के इनकाद के पेश नज़र कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से 21 और 22 मार्च को दी गई छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम मुलाजमीन आज मामूल के मुताबिक अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत इत्तेहादियों में शामिल जमातों को अहम इजलास के लिए बुला लिया गया है। आपको बताएं कि यह अहम इजलास इस्लामाबाद में आज हुआ, जिसमें अहम कौमी उमूर और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई और ये तय पाया कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को तलब किया जाएगा, जिसमें रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले होंगे। हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने वाले पुलिस और रेंजर्स एहलकारों पर इमरान खान के हुक्म से हमलों और तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि PTI सियासी जमात नहीं, कलदम तंजीमों के तरबियत याफ्ता जत्थों के जरिए रियासती इदारों के एहलकारों पर लश्कर कुशी इंतहाई तशवीशनाक है। रियासत दुश्मनी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इजलास में सोशल मीडिया और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इदारों बिलखुसूस आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। इजलास के एलामिये में कहा गया कि ये आज़ादी इजहार नहीं, किसी भी माशरे में यह रवैया काबिल कबूल नहीं होता। एलामिये में कहा गया है कि एक मुल्क में इंसाफ के दो मेयार कबूल नहीं हैं। इमरान खान और उनके साथियों के साथ सलूक से तराजू के पलड़े बराबर न होने का तासुर मजीद गहरा हो रहा है। इजलास में जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले, पुलिस अफसरों और एहलकारों को जख्मी करने, इमलाक की तोड़फोड़, तशद्दुद और जलाओ घेराव पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। हुकूमती इत्तेहाद ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक को तशवीशनाक करार देते हुए मरियम नवाज के बारे में घटिया गुफ्तगू की मजम्मत की। इजलास में मुल्क की माशी, सियासी, दाखिली और खारिजी अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। शुरका को मईशत, IMF प्रोग्राम की बहाली और अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम से आगाह किया गया, जिसमें रमज़ान में गरीब खानदानों को आटे की मुफ्त फराहमी, कम तनख्वाह आमदन वाले लोगों के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये की खुसूसी रियायत देने की स्कीम, नौजवानों के लिए CSS के खुसूसी इम्तिहान का इनेकाद, शमसी तवानाई के फरोग, नौजवानों के लिए बिलासूद और रियायती कर्ज, सैलाब मुतासरीन की बहाली समेत दीगर प्रोग्राम शामिल हैं। इजलास ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मईशत और IMF प्रोग्राम की बहाली और मुश्किल हालात के बावजूद आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के इक़दामात को सराहा और इन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि 16 मार्च को सेनेट इजलास में IMF प्रोग्राम में ताख़ीर की वजूहात से मुताल्लिक़ मेरा बयान सयाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से एक सेनेटर के सवाल का जवाब देते हुए मेरा मौक़िफ़ था कि खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान को अपने जौहरी प्रोग्राम का मुकम्मल हक हासिल है। ये किसी बैरूनी दबाव के बगैर हमारे कौमी मफादात के मुताबिक है और इसे किसी भी तरह से IMF के साथ मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा कि IMF या किसी दूसरे मुल्क ने हमारी जौहरी सलाहियत के हवाले से कोई शर्त आयद नहीं की और ना ही कोई मुतालबा किया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताख़ीर की वजूहात खालिस्तन तकनीकी है। मामले को जल्द हतमी शक्ल देने के लिए IMF के साथ मुसलसल राब्ते में है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक और तारीखी इक़दाम, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS के खुसूसी इम्तहान के चौथे चांस की सहूलत के लिए उम्र की बालाई हद में इजाफा कर दिया है। अब 35 साल तक की उम्र के अफराद ये खुसूसी इम्तहान दे सकेंगे।
इस इम्तिहान के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अक़लियती उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत के अहल हैं, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ख़वातीन और सिंध के दही और शहरी बलूचिस्तान के दही और साबिक़ा क़बाइली अज़ला के अफराद इस इम्तिहान की अहलियत रखते हैं। दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 21 मार्च 2023 है। नाज़रीन, इसी अहम इकदाम के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। हमें साथ लाइन पर ज्वाइन किया है फ़हद अहमद ने, साबका उम्मीदवार हैं CSS के, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। फ़हद, बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, एक बहुत अहम इकदाम, हमें मालूम है कि बहुत टफ जो है एग्ज़ाम हुआ करता है और अमूमी तौर पर कुछ लोग जो है वो इसके अंदर रह जाते होते हैं। उम्र की हद भी इस पर होती है, 3 बार की ऑप्शंस भी होती हैं। इस अहम इकदाम के ऊपर आप क्या समझते हैं, कितना फ़ायदा होगा आप जैसे लोगों को? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। इस इकदाम की जो तारीखी अहमियत है, CSS की तैयारी करने वाले उन कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा होती है, जो दिन रात एक करके तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे किताबें खोल के सर डाल के बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से ये फैसला है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का समा है। और यकीनन जो CSS के कैंडिडेट्स हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ रही होगी और उनको इसकी बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये एक मुश्किल एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग एस्पायरेंट होते हैं और मुल्क की खिदमत के जज्बे से भरे होते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम अपने मास्टर क्लासेस पास करते हैं वो बैठ जाते हैं लाइब्रेरियों के अंदर, दिन रात कर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में रिसर्च करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि CSS का एग्ज़ाम एक वसी एग्ज़ाम है, इसमें 12 पेपर होते हैं, 6 कंपल्सरी होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं, एक्सटेंडेड तैयारी करनी पड़ती है, इसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो कहीं गाइडेंस की कमी की वजह से, कहीं तैयारी के ऊंच नीच की वजह से 1-2 नंबर से जब स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो फिर कोशिश करते हैं हम अगली अटैम्प्ट कर लें और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर कोई अपना मुफीद किरदार अदा करें, मुल्क को कौम की तरक्की का हिस्सा बने। लेकिन जब वो एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से और चांसेस के कम होने की वजह से उस कौमी धारे का हिस्सा नहीं बन पाते, तो ये उनकी सारी जिंदगी के लिए उनके दिल में एक कसक सी रह जाती है, एक जो है ना उनकी एक खलश रह जाती है कि हम इसका हिस्सा नहीं बन सके। अच्छा, फिर वो इसके लिए कोशिशें करते रहते हैं। हमारे जब मैं तैयारी CSS की कर रहा था तो हमारे साथ जितने कैंडिडेट्स हैं तो वो एज रिस्ट्रिक्शन पे बहुत ज़्यादा नाला थे, बहुत ज़्यादा खफा होते थे, वो आर्टिकल्स लिखते थे, डॉन में एडिटोरियल लिखते थे कि भी इसको चेंज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन मुशर्रफ के दौर में लिया गया था और एक सोल्जर के माइंड से लिया गया था। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स को अपने तरीके से इंटरप्रेट किया और जिसकी वजह से नौजवानों की एक कसीर तादाद जो है ना ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने से और मुल्क को कौम की खिदमत करने से रह गई थी। लेकिन इस किस्म ये जो इकदाम है 35 साल तक एज का चांस देना, ये ऑलरेडी जो PMS का एग्जाम है प्रोविंशियल लेवल पे जो CSS लेवल का होता है उसमें मौजूद है, और मेरे हिसाब से इसको रूटीन बनाना चाहिए 35 साल तक के लिए। और इसके अंदर चांसेस को तो वैसे तो ठीक है, चौथा चांस ये अच्छी बात है, बल्कि चांसेस की लिमिट ही खत्म कर देनी चाहिए कि इससे जो काबिल अफराद हैं, जो तजर्बाकार लोग होंगे वो आगे बढ़ेंगे और वो ज्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी की गाइडेंस देंगे, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा डालेंगे और इनपुट देंगे। इस तरीके से बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स आएंगी। जो ब्यूरोक्रेसी पे एक इल्जाम होता है या ब्यूरोक्रेसी पे एक बात आती है कि ये उस तरीके से रफ्तार से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो ये बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे, उसमें एक नए माइंड सामने आएंगे, वो पोटेंशियल सामने आएगा जो इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, इन कदगन की वजह से पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फ़हद अहमद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, साबिक उम्मीदवार थे CSS के, और वो तमाम लोग जो इस इकदाम से फ़ायदा उठाएंगे उनको हम ऑल द बेस्ट कहते हैं। और यहीं पर कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हज़रत दाता गंज बख्श के दरबार पर हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान वज़ीर आला ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए 2010 से बंद कार पार्किंग को खोलने का फैसला किया, जिसके SOPs के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने लंगर खाने के इंतजामात का जायजा लिया और कहा कि लंगर खाने के इंतजामात आलमी मेयार के मुताबिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि दाता गंज बख्श के असल हुजरे और बरामदों की भी तज़य्युन और आराइश की जाए। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि रियासत पर हमला करने, दर्जनों पुलिस वालों के सर फाड़ने, गाड़ियां जलाने, पेट्रोल बम चलाने और जमानत पार्क से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बरामद होने के बाद इस शख्स को आमन का भाषण याद आ गया। मरियम नवाज ने कहा कि इस दहशतगर्द को पता चल गया है कि इसकी दहशतगर्दी पर कानून हरकत में आएगा।
यहाँ पर आपको बताएं कि तखफीफ गुर्बत की वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि मुल्क के अदालती निज़ाम को मुजरिमों और गुंडों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान न्याजी निज़ाम को मफलूज बनाना चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुजरिम और जराइम पेशा अनासर ही ऐसे तर्ज अमल से अदालतों पर असरअंदाज होते हैं। इमरान न्याजी मुहज़्ज़ब शहरी की तरह अदालतों में पेश क्यों नहीं होता? वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान न्याजी कानून तोड़ कर कहता है कि मैंने कभी कानून शिकनी नहीं की। लगता है इस शख्स ने झूठ बोलने में हिटलर के गैबल्स से ट्रेनिंग ली है। शाजिया मरी ने कहा कि अदालती हुक्म पर इमरान न्याजी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई, लेकिन ये आदमी मोटरवे से उतरने के बाद डंडा बरदार लश्कर इकट्ठा करता रहा। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली और जमीयत उलमा इस्लाम फे बलूचिस्तान के मरकजी रहनुमा मलिक सिकंदर खान एडवोकेट ने इमरान खान और PTI की तर्ज सियासत को बचगाना और मज़हक़ खेज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क पाकिस्तान और मुल्की इदारों के तशख़्ख़ुस को इमरान खान के कहने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जो किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम फे इमरान खान और PTI के इस मनफी हथकंडों के खिलाफ हर कानूनी फोरम का इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 cc से कम की गाड़ियों के लिए 100 रुपये कम कीमत पर पेट्रोल की फराहमी के ऐलान पर आवाम में खुशी की लहर दिखाई देती है। आवाम का कहना है कि हुकूमत का ये ऐलान साबित करता है कि मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राबता किया है लाहौर में अपने नुमाइंदे मुआज़िमुद्दीन से। जी मुआज़िम, आगाह कीजिएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए प्लान बनाया गया है कि 100 रुपये तक कम कीमत के ऊपर मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया जाएगा, जिसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया गया और 6 हफ्ते के अंदर इसका इतलाक भी कर दिया जाएगा। गरीब आवाम को जो पेट्रोल है वो 100 रुपये कम कीमत पर मुहैया होगा। आवाम जो है वो इस ऐलान के वो काफ़ी खुश दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि ये बड़ा एक अच्छा ऐलान है। हमेशा जब भी नून लीग आई है ना, इन्होंने गरीब लोगों के लिए बेहतरी किया है, जब भी किया है। तो मैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाइकों के लिए पेट्रोल जो सस्ता कर रहे हैं अच्छी बात है और हमारे लिए खुशी की भी बात है, सस्ता हो रहा है। गरीब आदमी के लिए कुछ लो रिलीफ मिला है ना। पहले तो हर बंदा परेशान था महंगाई की वजह से। ये अच्छा करेंगे, सवारी के लिए भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान दो तरह के लोग हैं, बहुत अमीर या बहुत गरीब। का कहना है कि पाकिस्तान में गरीबों को रिलीफ फराहम किया जाएगा और कहते हैं जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इसी कोशिशों की सूरत में ये प्लान किया गया है। पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल सवारों को 100 रुपये, रिक्शा सवारों को 100 रुपये और गाड़ियों जो छोटी सी गाड़ियाँ हैं 800 cc उनको 100 रुपये कम कीमत में मुहैया किया जाएगा। पाकिस्तान के तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो आवाम है वो 100 रुपये कम कीमत के ऊपर जो है पेट्रोल हासिल कर सकेगी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत ज़िला जेहलम के मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले 1.5 लाख अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। जेहलम से नईम भट्टी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से पंजाब के दूसरे शहरों की तरह ज़िला जेहलम में भी आवाम के लिए रमज़ान मुबारक में मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला भर में मुस्तहिक अफराद और नादार अफराद को रमज़ान मुबारक के दौरान 10 किलो आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। जेहलम की तकरीबन 1.5 लाख ख़ानदान जो है वो इस प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होंगे। 8 जो है वो मेगा सेंटर्स बनाए हैं। जिला की चारों तहसीलों में कायम 60 यूटिलिटी स्टोर पर भी मुफ्त आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत है। जिन लोगों के लिए रोज़गार नहीं है उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। मैं पंजाब हुकूमत को, गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। गरीब बंदे हमारे शनाख्ती कार्ड से आटा मिल रहा है, चंगा होया गरीब है। लेकिन गरीब बंदे के लिए सहूलत कर रहे हैं, अल्लाह उनको बहुत दे। ये तो बहुत अच्छी बात है, गरीबों का ख्याल कर रहे हैं, हम इस बात पे खुश हैं। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने मुफ्त आटे की फराहमी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घराने मुफ्त आटे का खुसूसी पैकेज हासिल कर सकेंगे और गैर रजिस्टर्ड अफराद में 8070 पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करके मुफ्त आटे की इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी के इनकलाबी प्रोग्राम को लोगों ने खूब सराहा। नईम भट्टी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, जेहलम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम के लिए रमज़ान में मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज़ हो चुका है। फैसलाबाद के 11 लाख से ज़्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली आबिद।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर रमज़ानुल मुबारक में गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए पंजाब की हुकूमत की तरफ से जिला फैसलाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी शुरू हो गई है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान जिला भर के मुस्तहिक गरीब और नादार 11 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ानुल मुबारक के दौरान 10 किलोग्राम आटे के 3 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। तो वही सिलसिला है कि जितना खर्चा उस पर आता था, अब इस साल हम बाजार नहीं लगा रहे, लेकिन जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी उसका आटा लेकर अवाम में तकसीम किया जा रहा है। जिला फैसलाबाद की 5 तहसीलों में कायम 240 मुंतखब दुकानों और पॉइंट्स पर रोजाना की बुनियाद पर 1,25,000 थैले फराहम किए जा रहे हैं। सिटी फैसलाबाद में 94, तहसील फैसलाबाद में 17, जलावाला में 55, तहसील तांदियावाला में 33, तहसील समुद्री में 34 और तहसील चकझुमरा में 7 मुंतखब दुकानों और पॉइंट्स के जरिए गरीब अफराद को मुफ्त आटे के थैले दिए जा रहे हैं। आटा गरीब आवाम के लिए दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है। गरीब आवाम के लिए जो सहूलत है, आटा मिल रहा, लाइना लगे कार्ड दिखाई जाते ले जाते हैं, अच्छा तरीके ना दे रहे हैं। शुक्रिया उन्होंने जिन्हें चलो आटे का ताबन करने लग गए। जिला भर में 25 रमजान तक मुंतखब किराना स्टोर्स और ट्रैकिंग पॉइंट्स पर मुफ्त आटा दस्तयाब होगा। इस हवाले से अवामी शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किए गए हैं। हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी गरीब आदमी के मुआशी बोझ को कम करने में यकीनन मददगार साबित होगी। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी है। सदर मुमलिकत ने कहा कि उम्मीद है कि 9 मुंतखब अहदेदारान मुल्क में ज़राए इब्लाग की तरक्की के लिए इक़दामात मज़ीद तेज़ करेंगे। उन्होंने फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए अखबारात की जानिब से किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मीडिया मुल्क में अमन, बर्दाश्त, अखलाकी और जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए काम करे। ज़राए इब्लाग समाजी मसाइल, ख़वातीन और खुसूसी अफराद के हुकूक़ पर भी लोगों में आगाही पैदा करें। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान की तहरीक में वलवला अंगेज़ नारों और पुरजोश जज्बात ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हुसूल की कोशिशों को दवाम बख्शा। तहरीक के दौरान नारों की अहमियत के बारे में मुल्तान से शिराज दुरानी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी के बाद बरे सगीर के मुस्लिम अकाबरीन और ज़ी शऊर मुसलमान अलहदा वतन के हसूल की तगो दो में लग गए। उस दौरान मुसलमानों ने नजरियाती फिक्र की तर्जुमानी करते हुए नारे तख्लीक किए। ये अंदिया था एक मंजिल के हसूल का, और वो मंजिल थी ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान जैसे नारे ने मुसलमान नौजवानों को तवानाई बख्शी। 23 मार्च 1940 को बिहार मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने एक करारदाद मंजूर करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद को मुसलमानों के कौमी नारे का दर्जा दिया। इसके बाद मुसलमानों के तमाम जुलूसों, कॉन्फ्रेंसों और इज्तिमात में इस नारे से फिजा गूंज उठती। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरे अकाबरीन नौजवानों के मुंह से जब ये नारे सुनते तो तमानियत का इजहार करते हुए कहते कि अब उनका पैगाम बरे सगीर के चप्पा चप्पा में पूरी आबोताब के साथ फैल चुका है। तहरीक के उरूज पर एक हिंदू तालिब इल्म ने मुसलमान तालिब इल्म असगर सौदाई से सवाल किया कि आप पाकिस्तान की रट लगा रहे हैं, इसका मकसद और मतलब क्या है। इस पर असगर सौदाई के मुंह से ये तारीखी और यादगार मिसरा निकला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हादी और राहबर सरवर दीन, साहिब इल्मो अज़्म यकीन, कुरान की मानिंद हसीन, अहमद मुरसल सल्ले अला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह। कौमियत और नजरिए की बुनियाद पर तख्लीक किए गए नारों ने मुसलमानों में इत्तेहाद और यगानगत को परवान चढ़ाया। ये नारे आज भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के अज़हान और दिलों में जिंदा हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सिक्योरिटी इदारों के हाथों बढ़ते जानी नुकसान की वजह से तहरीक तालिबान पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो गई। इख्तलाफात की वजह से TTP मोहम्मद सवाद और बाजोड़ एजेंसी मरकजी क़यादत से नाराज़ हैं और TTP से अलहदगी के लिए मुशावरत कर रहे हैं। इख्तलाफात की एक वजह वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम और मरकजी क़यादत की जानिब से इंतजामी अमूर में महसूद और वज़ीर कौमों को दूसरे कबाइल पर फौक़ियत देते हुए बाकी ग्रुप से मुशावरत न करना शामिल है। अफगान जंगजुओं को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान में इख्तलाफात का बायस है।
اختلافات کی دوری کے لیے گزشتہ دنوں TTP باجوڑ کے اہم لیڈر شیخ گل محمد اور سوات کے ڈاکٹر حمود نے مفتی نور ولی کے ساتھ جرگہ بھی کیا۔ مفتی نور ولی کی جانب سے مطالبات ماننے سے انکار پر جرگہ ناکام ہو گیا۔ ناظرین، کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں فسطائی مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے جبری طور پر بے دخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے ضلع بانڈی پورہ میں مزید 2 رہائشی مکانات کو ضبط کر لیا گیا اور یہ مکانات عبد المجید ریشی اور محمد جمال ملک کی ملکیت تھے۔ دلی کے زیر کنٹرول خصوصی تحقیقاتی یونٹ نے ضلع پلوامہ کے علاقے کوکپورہ میں ایک ممتاز آزادی پسند رہنما ریاض احمد ڈار کے گھر پر چھاپا مارا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ضلع اسلام آباد کے علاقے چھٹی سنگھ پورہ میں سکھ برادری کے 35 افراد کے قتل عام سمیت مقبوضہ علاقے میں قتل کے تمام واقعات کی بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینئر حریت رہنما غلام احمد گلزار نے سکھوں کے قتل عام کی 23ویں برسی کے موقع پر سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوج اور اس کی ایجنسیوں نے کشمیریوں کی منصفانہ تحریک آزادی کو اقوام عالم میں بدنام کرنے کے لیے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پر اس قتل عام کی منصوبہ بندی کی تھی۔ 2000 میں آج ہی کے دن بھارتی فوجیوں نے بھیس بدل کر چھٹی سنگھ پورہ گاؤں میں گھس کر سکھ برادری کے افراد کو قتل کیا اور دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں کشمیری مجاہدین نے قتل کیا ہے۔ بھارتی پنجاب میں خالصتان تحریک زور پکڑنے لگی، مودی حکومت نے پنجاب کو بھی جیل میں تبدیل کر دیا۔ وارث پنجاب دے تنظیم کے سربراہ اور خالصتان کے حامی رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے لیے جاری کریک ڈاؤن چوتھے روز بھی جاری رہا۔ پولیس نے اب تک 100 سے زائد سکھوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں امرت پال سنگھ کے چچا اور قریبی ساتھی بھی شامل ہیں۔ کریک ڈاؤن کے بعد پوری ریاست میں حالات کشیدہ ہیں۔ گلی محلوں اور سڑکوں پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کا گشت جاری ہے، جبکہ 4 روز سے انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ وارث پنجاب دے تنظیم کے وکیل کا کہنا ہے کہ امرت پال کو ہفتے کے روز حراست میں لے لیا گیا تھا، تاہم پولیس نے گرفتاری ظاہر نہیں کی۔ خدشہ ہے کہ امرت پال سنگھ کو جعلی پولیس مقابلے میں قتل کیا جائے گا۔ سکھ رہنما کے وکیل نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں امرت پال کو حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف درخواست بھی دائر کی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے کچھ خبریں شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے شمالی کوریا کے بیلسٹک میزائل تجربات پر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرینفیلڈ نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ تجربات نہ صرف خطرناک، غیر مستحکم اور غیر قانونی ہیں، بلکہ یہ شمالی کوریا کو مزید جدید اور خطرناک ہتھیاروں کی تیاری کو آگے بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل میروسلاو جینکا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے اس سال بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کل 14 میزائل لانچ کیے ہیں۔ اقوام متحدہ نے موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور انسانوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے متعدد قابل عمل اور مؤثر آپریشنز موجود ہیں، اور ان آپشنز کی موجودگی کی صورتحال میں IPCC کی تازہ رپورٹ نے واضح کیا کہ موجودہ منصوبے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہیں۔ رپورٹ میں دنیا کے معروف سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عالمی موسمیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے کافی وسائل اور علم موجود ہیں۔ ناظرین، چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ماسکو میں دونوں کی اہم ملاقات ہوئی ہے، اور روسی سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے روس کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک جامع تصویراتی تعاون میں شراکت دار ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین تنازع پر بھی بات چیت کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے چین کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر شی جن پنگ کی امن اور تجاویز پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو ہمیشہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس سے پہلے صدر شی جن پنگ 3 روزہ دورے پر ماسکو پہنچے تو ہوائی اڈے پر روس کے نائب وزیر اعظم چونی شینکوف اور اعلیٰ حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر شی جن پنگ کے دورے میں دونوں ملکوں کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوں گے۔ کولمبیا میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 21 ہو گئی۔ یہ حادثہ دارالحکومت بوگوٹا سے 75 کلومیٹر شمال میں سوتاسا کے دہی علاقے میں پیش آیا، جہاں 30 سے زائد کان کوئلے کی 5 ملحقہ کانوں میں 900 میٹر گہرائی میں کام کر رہے تھے۔ وزیر توانائی اور کانکنی آئرین
ویلز کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کان میں انتہائی آتشگیر میتھین گیس جمع ہونے سے دھماکہ ہوا اور کان مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایران اور افغانستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں قدیم تہوار نوروز آج روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ فارسی میں نوروز کے لغوی معنی ہے نیا دن، شمسی سال کے آغاز اور بہار کی آمد پر یہ تہوار وسطی ایشیائی سمیت کئی ممالک میں صدیوں سے منایا جاتا ہے۔ نوروز کے موقع پر خصوصی پکوانوں سے سجا حفظین دسترخوان کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نوروز کے موقع پر گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل پھولوں سے سجا لیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد جشن نوروز سرکاری سطح پر نہیں منایا جاتا، تاہم طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ عام شہریوں کے لیے نوروز منانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بھی جشن نوروز کے سلسلے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 105 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق کورونا کے 3768 نئے ٹیسٹ ہوئے، جن میں سے مثبت کیسز کی شرح 2.79% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں وائرس سے کوئی اموات رپورٹ نہیں ہوئی، تاہم ملک بھر میں کورونا کے 18 مریضوں کی حالت اب تشویشناک ہے۔ ناظرین، شاعری کو انسانی احساسات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک خاص مقام حاصل ہے۔ شاعری کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج دنیا بھر میں شاعری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ سرائیکی شاعری کی مٹھاس اور لاسانی تاثیر کے حوالے سے ملتان سے مزمل حسین جتوئی کی رپورٹ دیکھیے۔ سوچو آخر کیوں کوئی پیا دل نیلام کریں دے، دل جہیں شاہ آخر دل کو کون بچیں دے۔ 1999 میں اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں 21 مارچ کو شاعری کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہر زبان کے بولنے والے اپنی زبان میں کی گئی شاعری اور شعراء کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سرائیکی پٹی بھی شعر و ادب کے حوالے سے بڑی زرخیز ہے۔ یہ زرخیزی اس امر کی شاہد ہے کہ یہاں خواجہ غلام فرید، شاکر شجابادی، عاشق بزدار، احمد خان طارق، عزیز شاہد، جہانگیر مخلص، ریاض عصمت اور اسرار گرمانی جیسے نامور شعراء نے صحرا کی تپتی ریت پر جھلس کر ادب نواز نمازیوں کی امامت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ خواجہ غلام فرید کی کافی ہو یا احمد خان طارق کا دوڑا، علاقائی روایت و ثقافت، عشق و محبت اور علاقائی محرومیوں کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ اشو لال کا سندھو دریا سے مکالمہ ہو یا سیف اللہ آصف کی شاعری میں دامانی لہجے کی خوشبو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے شعراء کرام سرائیکی شاعری کے حوالے سے مشہور و مقبول ہوئے، لیکن خواجہ غلام فرید کے بعد جو مقبولیت و شہرت شاکر شجابادی کے حصے میں آئی، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ فکردا سچ ابھردا ہے سچیندے شام تھی ویندی، خیالیں چکون اج کل گلے شام تھی ویندی، خیالیں وچ سکون اج کل گلیندے شام تھی ویندی۔ خواجہ غلام فرید سے شروع ہونے والے اس سلسلے کو دور حاضر میں بھی بے شمار نئے شعراء سرائیکی ادب کے در و بام کو روشن کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مزمل حسین جتوئی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ اور اب شامل کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے خبریں۔ بدلتے موسم کی خبریں لیے میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، مارچ میں دسمبر کا گمان ہونے لگا۔ اسلام آباد میں رات سے تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کے حوالے سے کیا پیشگوئی کی ہے، جانتے ہیں نمائندہ پی ٹی وی نیوز مریم ملک سے۔ جی مریم، آگاہ کیجیے گا۔ ملک بھر میں بارشوں کی دوبارہ انٹری، سردی واپس لوٹ آئی ہے اور مارچ کے مہینے میں ہی جنوری کا گمان ہونے لگا ہے۔ شہر اقتدار کی بات کی جائے تو آج صبح سے ہی اسلام آباد کا موسم بھیگا بھیگا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ یالہ باری نے موسم کو مزید سرد بنا دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ موسم مزید 2 دن ایسے ہی رہے گا، ٹھنڈ بڑھ جائے گی اور آج بارش کے بعد ہر چیز دھل کر صاف ستھری ہو چکی ہے۔ میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مارگلا کی پہاڑیاں خوبصورت منظر پیش کری ہے۔ ہواؤں نے موسم کو مزید سرد بنا دیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں موسم ایسے ہی رہنے والا ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بارش
हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है और मुतलका जितने इदारे हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने वाला है और 2 दिन बाद रमज़ान जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने नवीद सुनाई है कि रमज़ान का पहला अशरा ऐसा ही खुशगवार गुजरेगा। बारिशों का ये सिलसिला जो है 24 मार्च तक जारी रहेगा, जबकि मार्च के आखिरी हफ्ते में दोबारा बारिशों का एक नया स्पेल मुल्क भर में एंट्री देगा। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान जाहिर किया है। सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई की गई है। इस वक्त पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद यूसुफजई से। सज्जाद, पेशावर के मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई जाहिर की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है और बारिश का जो ये नया सिलसिला है ये अगले जुम्मे तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। इस वक्त पेशावर में हल्के बादल है, ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम काफ़ी खुशगवार है। सूबे के बेशतर अजला में महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा जाहिर किया है और साथ मौसमियात ने यह भी पेशगोई की है कि तेज़ बारिशों के बायस मर्दान और शहरा चारसदा दीर सवात में सवात के जो नदी नाली है उसमें तुग़यानी आने का खदशा जाहिर किया गया है और ज़िले इंतज़ामिया को रेड अलर्ट जारी किया है कि वो पेशगी इक़दाम उठाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए वो बर वक्त इक़दाम उठा सके। और आज़ीन, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हुई। बारिशों का ये सिलसिला अगले 3 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। नाज़रीन, कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला हवा के शदीद कम दबाव की लपेट में आ चुके हैं। इस वक्त कोयटा में हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई, डायरेक्टर महकमे मौसमियात बलूचिस्तान मुख्तार अहमद मक्सी के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मीर सलाम, सूबे में मौसम की सूरत हाल से तफसीलन आगाह कीजिएगा। आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने को जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं डायरेक्टर महकमा मौसमियात बलूचिस्तान मुख्तार मक्सी साहब के साथ। सिस्टम में एंटर हो गया, कुछ तो बारिशें हो गई हैं लास्ट 24 आवर में, लसबेला और वाशुक वगैरह में हुई हैं बारिशें। मजीद जो है 22 को भी बारिशें हैं इसमें, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान के और नॉर्दर्न पार्ट्स में। प्लस जो है 23 तारीख को जो है हेवी रेन के चांसेस हैं इसी एरियाज़ में और हमें फ्लैश फ्लड के भी इसमें वार्निंग इश्यूज हमें की हुई हैं, तो जो है लोग अलर्ट रहें। जी, ये थे मुख्तार मक्सी साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात बलूचिस्तान। और मलका कौसार, मरी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से अवाम के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ यालाबारी, बारिश और धुंध से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। मूसलाधार बारिश का सिलसिला रात गए शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे से ताहाल जारी है। शदीद बारिश की वजह से बरसाती नाले पानी से बिफर गए हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो मिट्टी में 35, तुरबत और छोर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। मौसम की खबरें आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि जंगलात कुर्राए अर्ज़ का एक अजीम असासा है जो कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जंगलात की अहमियत को उजागर करने के लिए आज पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। तफसील इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 21 मार्च को जंगलात का आलमी दिन मनाया जाता है। साल 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में जंगलात का आलमी दिन मनाने की करारदाद पेश की गई, जिसका मकसद जंगलात को तक़वियत देने और इसकी कमी की सूरत में दुनिया को पहुंचने वाले नुकसानात की आलमी सतह पर आगाही फराहम करना है। फूल पौधे इंसानी शख्सियत और नफ्सियात पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। सायादार दरख्तों का वजूद न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि ये मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव का भी जरिया है। बैनुल अक़वामी इदारे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है
जो इन तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में जंगलात की कटाव को रोकने और आवाम के ताउन से वसी पैमाने पर शजरकारी की जरूरत पहले से कहीं बढ़ गई है। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये तनासब 23% था, जो गुजरते वक्त के साथ बतदरीज कम होकर 5% रह गई है। दरख्तों की बेदरख्त कटाई इसकी सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली की महाज पर तरक्की पजीर मुल्कों का मौक़िफ़ कामयाबी से आगे पहुंचाया है। तो ऐसे में बहैसियत फ़र्द हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क का हर शहरी कौमी सतह पर शजरकारी मुहिम में अपना हिस्सा डाले। नाज़रीन, अमेरिका से इस्लामाबाद पहुंचने वाले मुसाफिर का 9,500 अमेरिकी डॉलर का गुमशुदा पर्स उनके हवाले कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अहले खाना के हमरा अमेरिका से परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचने वाला मुसाफिर सामान के हुसूल के दौरान अपना पर्स कुर्सी पर भूल गया। सिविल एविएशन टीम की कोशिश से बरामद शुदा 27 लाख रुपए मालियत की करेंसी असल मालिक के हवाले कर दी गई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में छठी इंटरनेशनल केमल कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की मंदुबीन शरीक हो रहे हैं। अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। छठी इंटरनेशनल कैमल कॉन्फ्रेंस के पहले रोज मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि ऊंट की अहमियत और अफादियत किसी से ढकी छुपी नहीं। जहां इसका दूध कुदरती इंसुलिन है, वहीं इसका गोश्त लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। उनका कहना था कि बहावलपुर का सहरा ऊँटों की अफजाइश और परवरिश के लिहाज से इंतहाई साजगार है। कैमल का दूध असल में दूध नहीं, वो एक मेडिसन है, वो एक दवाई है जिसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा जो स्किन को ग्लो करता है। जरूरत इस अमर की थी कि यूनिवर्सिटी की एकेडमिया, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लोग, रिसर्चर और मुख्तलिफ दुनिया से साइंटिस्ट इकट्ठे हों और हमारे कैमल की इम्प्रूवमेंट करें। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज चोलिस्तान से आए ऊँटों ने मुख्तलिफ करतब पेश किए, जिससे तलबा और तालिबात और मंदोबीन बेहद महजूज हुए। जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ अदारों की जानिब से स्टॉल्स भी सजाए गए हैं, जहाँ ऊँटों की सेहत और खुराक के हवाले से मुख्तलिफ अद्वियात रखी गई हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। लेजेंड्स लीग क्रिकेट मास्टर्स का टाइटल एशिया लायंस के नाम रहा। दोहा में खेले गए इवेंट के फाइनल में एशिया लायंस ने वर्ल्ड जायंट्स को 7 विकेटों से हराया। जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 147 रन स्कोर किए। जैक कैलिस ने 78 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। रॉस टेलर ने 32 रन स्कोर किए। लायंस की जानिब से बांग्लादेशी स्पिनर अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एशिया लायंस ने मतलूबा हदफ 16.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। उपुल तरंगा और तिलकरत्ने दिलशन ने 115 रन का आगाज फराहम किया। तरंगा 57 और दिलशन 58 रन बनाकर आउट हुए। मिसबाह हक और मोहम्मद हफीज 9 रन के साथ नॉट आउट बैटर रहे। हक कहीं से निकाल कर किसी और को दे दिया गया, उसका एहतमाम करें कि हकदार को पहुंच जाए। और आजकल मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, अपने आप को भी चैलेंज करता हूं कि आप लोग एलीट हैं। आप लोग माशरे में ख़ुद यहाँ तक जैसे पहुँचे हैं, हर फर्द एलीट है। आप पढ़ लिख लेते हैं, आपका एलीटिज़म है। ये मतलब एलीटिज़म नहीं, ये एलीट हैं कि आपको एक ख़ास अल्लाह ताला ने मौका दिया और पता नहीं कितनों का हिस्सा आपकी झोली में डाल दिया। ये भी जहन में रखिएगा कि अगर मैं जहाँ पर भी हूँ तो पता नहीं कितनों का हिस्सा मेरी झोली में आ गया, किसी को उसका अपना हिस्सा भी नहीं मिला। और ये इंसानी फ़र्क डालता है इसके अंदर। कभी परिंदे भूख से नहीं मरते, मगर इंसान जो है तफरीक करता है। अल्लाह ने सबको बराबर की क्वालिटीज़ दी, जहन दिया, जिस्म दिया, जज्बात दिए। सबके एक से जज्बात हैं, मोहब्बत, नफ़रत, सबके एक से जज्बात हैं, ख्वाहिशात एक सी हैं। मगर इंसान तफरीक करता है माल और दौलत में, जो उसके हाथ में अल्लाह ने दे दी उसके अंदर तफरीक करने लगता है। रोज़ी उसने अपने हाथ में रखी है, बाकी चीज़ों के अंदर अमीरी गरीबी हम बना देते हैं सब कुछ। तो लिहाजा इंसाफ के तकाज़ों के हवाले से जहाँ भी इंसाफ हो सके, और बहुत सारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बैठे हैं, आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये बड़ी अल्लाह की नेमत है आपके पास कि आप इंसाफ कर सकें। ये नेकियां कमाने का रास्ता है और आजमाइश भी है। मुझ जैसा आदमी ये महसूस करता है कि मैं एक बड़ी आजमाइश में हूँ, क्योंकि जो मुझ तक पहुँच सकते हैं वो, और जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते जवाबदेही सबकी होगी। और अल्लाह मुझसे पूछेगा कि क्यों नहीं तुम तक पहुँचे, तुमने रास्ते खोले, दरवाजे खोले, इस बात का एहतमाम किया कि लोग पहुँच सकें, या इंस्टीट्यूशन सेटअप किए।
शायद वो इम्कान ना हो आज के हर शख्स दरवाज़ा खोलकर अब मेरे पास और आपके पास आ जाए, मगर इंस्टीट्यूशन सेटअप किया। तो मैंने ये एहतमाम किया अपनी सदारत के दौरान, ये एहतमाम किया कि कोई, मैं आपके सामने यहाँ कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने कोई नौकरी सिफारिश पर नहीं दी, और मैंने एहतमाम किया कि कोई नौकरी मैं ना दूँ मगर इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मे करूँ कि मेरिट करो। तो जो भी मुझे सिफारिश की तो मैं कहा यार तुम जहाँ अप्लाई करना है अप्लाई करो, और फिर मुझसे कहो तो कि मेरिट हो वहाँ पर बग़ैर नाम के। एक बात मैं आपसे बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, कोई नौकरी मैंने नहीं दी, ठीक है ना। बाद में भी आजकल तो बाद में बहुत सारे खाते निकाले जाते हैं ना कि शायद कहीं दे दी हो तो किसी खाते में मिलेगा नहीं। दूसरी बात आपसे कहूँ कि मैंने किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन ज़िम्मेदार है, इसको इधर से उधर लगाना एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, और सिफारिश पर क्यों करूँ। दो बात हो गई। तीसरी बात हो गई जो मुल्क के मसाइल की बुनियाद है, जो आजकल मैं आपसे ज़्यादा कह रहा हूँ, मुझे ये एहसास होता है कि दुनिया जब तेज़ी से भाग रही हो और मैं और आप यही फ़िक्र करते रहें कि किस बोगी में बैठेंगे तो ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए। तो फास्टर डिसीजन मेकिंग, मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ कि फास्टर डिसीजन मेकिंग जब हो तो मैं फिर क्लेम करता हूँ आपके सामने कि कोई फ़ाइल मेरे यहाँ एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकता। एक दिन कि जब मेरे पास फ़ाइल पहुँच गया तो तहक़ीक़ात करके पहुँच गया, मेरी ऑब्जर्वेशन में अगर इंसाफ करना है तो उसमें देख लूँ, सबकी ऑब्जर्वेशन डिटेल्स देख लूँ। एक दिन शायद चंद फाइल्स जिनके अंदर मुझे पूरी हियरिंग करनी पड़ती है, और जब ये मुहतसिबीन के पास से जाता है तो कभी कभी कुछ फाइल्स, और मैं गिन कर आपके सामने रख सकता हूँ कि 4 साल में शायद 8-10 फाइल्स ऐसे होंगे जिसके अंदर हियरिंग करके या टाइम लगा, और वो भी 1-2 हफ्ते से नहीं। वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए पिछले दिनों आया, 3 कैंडिडेट्स है, और तीनों को मैंने फटाफट इंटरव्यूज़ किया और विद इन अ वीक इंटरव्यू किया। एक बाहर था उसको जूम पर किया, एक लाहौर में गया तो मैंने लाहौर में ही कर लिया, ये सोच कर के उसका ख़र्चा क्यों हो, जब मैं लाहौर में हूँ लाहौर में कर लूँ। फिर एक का मैंने इस्लामाबाद में कर आई डिसाइडेड, जैसे ही आखिरी इंटरव्यू ख़त्म हुआ विद इन 10 मिनट्स माई स्टाफ हैड माई पेपर्स इंक्लूडिंग द मार्किंग सिस्टम, इंक्लूडिंग माई मार्किंग सिस्टम, ये भी कि भाई पूरा किसको किस सवाल पर कितने मार्क्स दिए, वो सब मैं अपने रिकॉर्ड के अंदर डालता हूँ। लोग कहते थे कि तुम दस्तखत मत किया करो, पकड़े जाओगे। मैंने कहा यार अगर इंसाफ से मैं काम करूंगा तो पकड़ा जाऊं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक तो ये था फास्टर डिसीजन मेकिंग, और ये मुहतसिबीन का इदारा माशाअल्लाह, क्रेडिट टू खावर जमील साहब एंड अदर मुहतसिब जिनके आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम, कि ये सब लोग अपने 60 दिन के अंदर जो आइनी इनके ऊपर बंदिश है, इनके एक्ट के तहत ये 60 दिन के अंदर फैसले करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे जिक्र करूं जो इनका कमाल है, इन्होंने आए और इन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दिया। यानी इनके, मैंने तो इनसे कहा तुम्हारे खाते में भी रेजोल्यूशन नहीं आया, इन्होंने कहा कि कोई फैसले क्या, बुलाया इंश्योरेंस कंपनी को, बुलाया कंप्लेनेंट को और कहा कि तुम सेटल करो और मैं नज़र रखूँगा कैसे सेटल कर रहे हो। तो इन्होंने इंसाफ का एहतमाम किया, मगर रिकॉर्ड पर नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, ब्रिंग इट ऑल ऑन रिकॉर्ड। मगर ये एक तरीक़ेकार है जो मैं आपसे, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु मे बी प्रेजेंट, इज़ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अच्छा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक टर्म है जिससे आप वाकिफ़ तो हैं। दूसरे फिर पंचायतों के अंदर और ये जिरगा के अंदर ये होता है कि बैठ जाते हैं और इंसाफ नहीं, डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं। फ़र्क है, इंसाफ होता है तराजू का, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये होता है कि यार तुम किस पर राज़ी हो जाओगे, तुम किस पर राज़ी हो जाओगे, स्टेटस को जो है वो कैसा है, क्या है, तुम लोग राज़ी नामा कर लो, जुल्म ना हो मगर राज़ी नामा कर लो। दैट इज़ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दुनिया के अंदर बड़ा कामयाब है, कोर्ट्स के अंदर केस कम हो गए। इंग्लैंड के अंदर 20 साल पहले, 30 साल पहले ढोल बजा बजा कर जो उनका तरीक़ा है, गांव में और विलेजेस के अंदर ये बात कही गई कि देखो अपना मुकादमा अदालत में नहीं ले जाओ, कई साल लगेंगे, आपस में रिजॉल्व करो और वो रेजोल्यूशन फिर कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगाएगा। तो बहुत सारा प्रेशर कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट में और मुकदमात से हट गया। कोई लोग तलाश करते हैं ना कि कोई यार मसला हल कर दे, इतना सिंपल सा है। आपस में भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो वो इंतज़ार करते हैं कोई बुज़ुर्ग बीच में पढ़कर हल कर दे। और सिंध के अंदर तो एक बड़ी अच्छी रवायत है कि लोग बैठकर जिरगा बिठाकर या पंचायत बिठाकर बहुत सारे मामलात सेटल करते हैं।
अच्छा, कानून भी पास हो गया। कानून ये पास हुआ 2017 के अंदर, जिसके अंदर मेरा भी हिस्सा बहुत था। ये पास हुआ कि 50 लाख से कम के सारे केसेस जो हैं वो ADR में जाने चाहिए। अच्छा, तो जाहिद हामिद साहब थे लॉ मिनिस्टर, मैं अपोजिशन में था, तो बिल मेल आया, तैयारी मैंने की, एक्स चीफ जस्टिस से सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, उनके साथ मिलकर तैयार किया। तो मैंने जाहिद हामिद साहब ने कहा कि जी 50 लाख कर डाल दें। मैंने कहा कि यार आपने कह दिया कि कानून ये कहता है कि 50 लाख के सारे केसेस नीचे ADR में जाएं। मैंने कहा ये होगा नहीं। तो कहने लगे डॉक्टर साहब आइन में, इसमें एक्ट में डालते हैं, नहीं होगा, लोग कोशिश करते रहेंगे कि ये हो जाए। अच्छा, तो अगर ADR हो जाए, आजकल ये वफाकी मोहतसिब का इदारा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ADR में, और ये जो इंश्योरेंस मोहतसिब हैं हमारे दोस्त, ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक्टिविटी लेते हैं। अच्छा, ये स्किल सेट है, तो जो गवर्नमेंट के लोग यहाँ बैठे हैं तो ये स्किल सेट का एक्वायर किया जाता है। ये नहीं कि जी मैंने फैसला कराना है और आप बैठ जाएं, ये स्किल सेट है। जैसे दुनिया में अब आप फिल्मों में देखते हैं कि अगर कोई रैंसम पर किसी को पकड़ ले तो स्किल्ड नेगोशिएटर बीच में आता है, आम आदमी नहीं आता, नेगोशिएटर बीच में आता है, स्किल्ड। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं इसमें भी स्किल्ड नेगोशिएटर की ज़रूरत है कि कोई बैठकर ADR करा दे। आप समझ गए बात को। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें, और एक मिसाल देता हूँ मैं, आम तौर पर जब मैंने ADR को ख़ुद समझा, इसके कोर्सेज भी कर लेते हैं और गवर्नमेंट के इदारे करा देते हैं, या ऑनलाइन आप समझ लें। एक छोटी सी मिसाल है कि बाज़ केक्स होते हैं जिनके अंदर नीचे बिस्कुट होता है, ऊपर चीज़ होती है, सब कुछ। तो अगर आपको कहा जाए कि जी इसका बंटवारा कर दो, तो एक सीधा तरीका है कि काट कर आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। मगर ये भी होता है कि बाज़ लोगों को बिस्कुट वाला हिस्सा पसंद है और बाज़ों को ऊपर का, तो यूं भी काटा जा सकता है। दिस इज़ द स्किल ऑफ ADR कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी को सॉल्व करो। तो मैं इंश्योरेंस मोहतसिब साहब की तारीफ़ करना चाहता हूँ एक और इशू पर, और वो इशू ये है कि जब सैलाब आए और सिंध के अंदर आपने देखा क्या बुरा हाल हुआ, और मैं यहाँ आखिरी मरतबा जब आया था, जब सैलाब के एतबार से देख रहा था और पानी पानी हर तरफ था, कितना नुकसान हुआ लोगों का। अगर किसी एतबार से इसका इंश्योरेंस होता क्रॉप्स का, तो ये कुशन हो जाती तकलीफ़। अच्छा, जहाँ इंश्योरेंस नहीं होता तो वहाँ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो एजेंसी जिसके अंदर हम अपना टैक्स देते हैं, सब कुछ, वो हुकूमत है। अच्छा, हुकूमत के भी वसाइल बड़े लिमिटेड हैं। अगर इन क्रॉप्स का इंश्योरेंस हो जाता तो री इंश्योरेंस होता। लंदन में कहा जाता है ना कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ इंश्योरेंस करती है, री इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये बर्डन जो है ये दुनिया बेयर कर लेती क्रॉप लॉसेस का। अच्छा, अब मैंने इनसे दरख्वास्त की, और ये सैलाब से पहले की गुफ्तगू है। मैं कराची एक मरतबा गया इनके दफ्तर में, तो वहाँ पर हमने ये बात की कि भाई इंश्योरेंस का स्पेक्ट्रम, अब ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ मुझको ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्मॉल परसेंटेज, शायद ऑलमोस्ट 1% या लेस देन 1% इंश्योरेंस में जाता है, बीमा जिस चीज़ का भी हो, और बराबर के ममालिक के अंदर 2-4% तक जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंश्योरेंस अगर मार्केट बन जाए इंश्योरेंस की, तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट अपनी जेब में हाथ ना डाले, बल्कि एक कोऑपरेटिव सिस्टम, हम एक दूसरे का डैमेज शेयर करें। इंश्योरेंस ही होती है। हम सोच रहे हैं ख़ानदानी इंश्योरेंस क्या होती है कि भाई भाई का ख्याल कर लेता है। ख़ानदानी इंश्योरेंस ये होती है कि सारा ख़ानदान मिलकर, कबीले की इंश्योरेंस ये होती है कबीला मिलकर मुश्किलात को हल कर देता है। तो लिहाजा इंस्टीट्यूशनल, तो इन्होंने बड़ा काम किया, इंश्योरेंस कंपनीज़ को बिठाया, प्रोजेक्ट्स को देखा कि बाज़ जगहों पर इंश्योरेंस अब ऑटोमेटिक हो गया कि जब बैंक लोन देता है फार्मर को तो वो इंश्योरेंस कंपलसरी करता है। वो क्यों इंश्योरेंस कंपलसरी करता है? वो ये कहता है कि जी अगर तुम लोन वापस नहीं करोगे तो मेरा तो दिवालिया हो जाएगा, तो वो इंश्योरेंस मार्कअप उसमें ज़रूर डालता है हर लोन में। तो एक वो है, वो अब ऑटोमेटिकली होता है। मगर वॉलंटरी इंश्योरेंस हमारे यहाँ कमज़ोर है, लिहाजा क्यों लोग कन्विंस नहीं है कि इससे कोई भला होगा, तो लिहाजा, और श्योरिटी नहीं है। मोहतसिब का काम क्या है कि जब लोगों का ड्यू बना तो इंश्योरेंस कंपनी गड़बड़ ना कर सके, लोगों को पता नहीं है। तो नतीजा ये है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि तुम्हारा डैमेज हुआ, तुम्हारी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, मगर ये कवर्ड नहीं था या इतना कवर्ड था, तो उस वक्त बेचारा परेशान हाल, जो औने पौने मिल जाता है वो चला जाता है। लिहाजा इंश्योरेंस के अंदर भरोसा कौम का नहीं बन रहा। अब अगर कोई मोहतसिब हो जो इंसाफ करे
तो कम से कम जो थ्योरी है वो तो पूरी हो जाए, है कि नहीं। ये फेयर सिस्टम है, इसमें इंसाफ ज़रूर होगा। अब उसके बाद इसका प्रोपोगेशन है। तो क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर बड़ा काम किया है इन्होंने, इनका काम नहीं था, ये इजाफी इन्होंने अपने उठा लिया और क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर कंपनीज़ को बिठाया, कंपनी से बात की। हमारा भी एक अजीब मामला है, पता चला जनाब पंजाब के अंदर किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने कई $1 मिलियन दिए कि तुम क्रॉप इंश्योरेंस करो। अच्छा 4-5 साल होती रही, सब कुछ होता रहा। उसके बाद जब मैं पूछता हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने कहा कि जी हमने कुछ सीखा ही नहीं इससे। अच्छा जब नहीं सीखा तो व्हाट अ वेस्ट। वो कर्जा हमारे गर्दन पर आ गया जो 20-30 मिलियन डॉलर दिया था क्रॉप इंश्योरेंस का, वो कर्जा हम भुगत रहे हैं, मगर हमने सीखा कुछ नहीं, क्योंकि जब आया तो हमने कैजुअली इस मामले को ले लिया। तो लिहाजा अब दोबारा इंटरनेशनल फंडिंग एंड लोकल फंडिंग से मिलकर इंश्योरेंस कंपनीज पायलट प्रोजेक्ट्स कर रही हैं बहुत सारी जगहों पर क्रॉप इंश्योरेंस, ताकि इसको प्रोमोट भी किया जाए। और हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंजन स्टार्ट करने के लिए जो किक स्टार्ट मारना पड़ेगा वो गवर्नमेंट को ही मारना पड़ेगा, है ना। जैसे मोटरसाइकिल आप स्टार्ट करते हैं तो वो किक स्टार्ट गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही इसमें ओरिजिनली थोड़ा सा बर्डन फार्मर के साथ मिलकर लगाएगी। यानी फार्मर अगर अब 50,000 लगाता है तो गवर्नमेंट भी 50,000 लगाएगी, समथिंग लाइक दैट, ताकि ये सिस्टम चले। मैं इनकी आपके यहाँ अब इस सक्खर के अंदर जब दफ्तर खुल जाएगा तो 2 चीज़ें और हैं। एक चीज़ तो लोगों को पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस मुहतसिब है भी, और ये सारे मुहतसिबीन के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके यहाँ फेडरल वफाकी मुहतसिब का दफ्तर भी है यहाँ सक्खर में, और वो भी कंप्लेंट्स लेते हैं। और पिछले 1 हफ्ता पहले फेडरल वफाकी मुहतसिब मेरे पास अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे, और इस साल उनकी कंप्लेंट्स की तादाद 40% इस साल बढ़ी है, क्योंकि हम सब ने मिलकर यही कोशिश की कि लोगों को पता नहीं है। अब फेडरल इंश्योरेंस के अंदर 170 इदारे आते हैं जो सक्खर में मौजूद हैं। 170 गवर्नमेंट के इदारे जो सक्खर में मौजूद हैं, वो इदारे आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो फेडरल मुहतसिब लेगा, बैंकिंग मुहतसिब भी लेगा। बैंक्स के ख़िलाफ़ एक एक चीज़ कि ATM के ऊपर मेरे साथ ये धोखा हो गया, चेक में मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई, मेरा ये पैसे काट दिए गए, ज़्यादा काटे गए, है ना, मेरा चेक बग़ैर दस्तखत के किसी और ने चेक निकाल लिया। और बहुत सारे स्कैम्स हैं बैंकिंग में भी। किसी ने फ़ोन करके पासवर्ड ले लिया मुझसे और उसने कहा कि जी मैं मेजर सो बोल रहा हूँ और पासवर्ड नहीं दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। वो मासूम लोग, ये सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया भर में स्कैम्स चल रहे हैं। अमेरिका में 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, उनके 50% स्कैम्स उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र तारी होगी मेरे और आपके ऊपर, हमारी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर होगी और इससे स्कैमर्स जो है वो तैयार है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। मासूम लोगों को यहाँ नेशनल सेविंग्स के अंदर मासूम लोगों के उनको NSC सर्टिफिकेट दिया या प्रॉफिट दिया तो बीच में से कागज़ निकाल कर दे दिया। बुज़ुर्गों को उन्होंने गिने नहीं, भरोसा कर लिया। मुरव्वत होती है, सामने बैठा हुआ है मुरव्वत होती है कि गिना नहीं। तो देर आर सो मेनी केसेस विच कम टू मी ऑफ कोर्स एंड इट कम्स, ऐसी टैक्स में आते हैं तो लोगों को पता नहीं है। तो आपसे भी गुजारिश करता हूँ, आप सब लोगों से, तो जो वफाकी मुहतसिब है जनरल, उसके 40% यानी अप्रॉक्सीमेटली कंप्लेंट्स मैक्सिमम हमारी गई थी 1,40,000 या 50,000 पर ईयर। अब शायद बढ़कर वो 2 लाख से ऊपर हो जाएंगी इस साल। इसका मतलब इंसाफ। अच्छा, और 60 दिन के अंदर इंसाफ, 60 दिन के अंदर बहुत अहम है। अरबों रुपए का इंसाफ इन्होंने दिया है। आज ये पूरी तकरीर शायद इन्होंने नहीं की, अरबों रुपए का इन्होंने इंसाफ दिया है इंश्योरेंस के अंदर। एक या कितना है फिगर, 2.53 बिलियन इन्होंने मुस्तहिक इंश्योरेंस को दिलवाया है। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो लिहाजा जिनको नहीं पता उनको बताया जाए। तो 5 मुहतसिब हैं फेडरल मुहतसिब, जो गवर्नमेंट के सुई गैस बिजली हर चीज़ों के अंदर वो डील करता है, और गवर्नमेंट के जितने इदारे, फेडरल जितने इदारे हैं, सब का इंसाफ आपको यहाँ मिलेगा। सवाए नौकरी की इश्यूज़ पर, नौकरी का तो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, वो इश्यूज़ नहीं, बाकी पब्लिक इंटरेक्शन विद दीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ये इंसाफ बड़ी जल्दी मिलता है। तो वो फिर दूसरा इंश्योरेंस मुहतसिब यहाँ मौजूद हैं। तीसरे बैंकिंग मुहतसिब के, बैंक के जिनका मैंने जिक्र किया, बैंक के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स और आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं। चौथे टैक्स मुहतसिब के फेडरल टैक्सेस,
यानी इनकम टैक्स हो, कस्टम्स ड्यूटी हो, सब कुछ, एंड वहाँ से बड़ा रिलीफ और इमीडिएट 60 डेज़ के अंदर अंदर रिलीफ, समटाइम्स मच लेस, बट 99% ऑफ द रिलीफ दे आर प्रोवाइडिंग ये 60 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी। और आखिरी जो मोहतसिब हैं वो हरासमेंट की मोहतसिब हैं, औरतों की इश्यूज़ के अंदर जहाँ हरासमेंट होता है, और होता बहुत है, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। कोई ख़वातीन ग्रुप से अगर आप पूछेंगे, अपने घर में आप पूछेंगे, अपने रिश्तेदारों में पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा। इसी वजह से औरतों को माशरत के अंदर और मईशत के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि